Good morning, Plus One Commerce. So, today we will be doing the last chapter of term 1, that is emerging modes of business. And in this lecture, we will be doing only 4 topics which are recommended by board. Other topics they have been deleted by the board. Okay, so this chapter is totally about e business and e commerce. And one more concept is there, that is business process outsourcing, BPO. It has been deleted. So we will be studying about only 2 topics, that is e-business and e-commerce. This chapter is related to globalization. How? So in 1991, there were 3 policies: LPG, liberalization, privatization, and globalization. So with the help of globalization, there has been a change in technology and in other things also which are important for the business. So globalization has helped us to do e-business and e-commerce. Without technology, it would not be have been possible. So what is e-business and what is e-commerce? So e-business is a wider term. It's a bigger term. E-commerce is a part of e-business. So in the first chapter, you have done industry, trade, and commerce. So when all these 3 things, industry, trade, and commerce, if they are done with the help of internet, then it becomes e-business. Whereas e-commerce includes only buying and selling over internet. ई बिज़नेस जो है उसमें बहुत सारी बिज़नेस एक्टिविटीज़ आ जाती हैं. वो सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग तक लिमिटेड नहीं है. उसमें प्रोडक्शन, इन्वेंट्री, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बिज़नेस के साथ रिलेटेड होती हैं ऑन अ हाई लेवल. It all comes in e-business. But e-commerce is only concerned with buying and selling over internet. So I just hope the meaning is clear. Now, before starting the chapter ahead, I would like to explain one term, that is intranet. Internet you all know, but what is intranet? So I have told you one example in the last chapter about core banking, that with the help of database, the main bank and the other banks which are connected with the server, they can easily come to know about all the transactions that we have made, क्योंकि वो सर्वर के साथ कनेक्टेड होता है और जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं ऑनलाइन वो उनको पता चल जाती हैं. तो ये जो चैप्टर है इसमें मैं इंटरनेट के बारे में क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आगे जो हमने स्कोप पढ़ना है, जब बिज़नेस फर्म दूसरे बिज़नेस फर्म्स के साथ कांटेक्ट करते हैं, वो इंटरनेट तो होता ही है, इंट्रानेट की भी वो हेल्प लेते हैं. लेकिन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंटरनेट एंड इंट्रानेट? जो इंटरनेट है उसको हम सब यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, फॉर ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, हमारे पास उसके लिए एक्सेस है. लेकिन जो इंट्रानेट है, दैट इज़ अ वाइडर टर्म, क्योंकि उसका जो उसको मोस्टली एम्प्लॉयज़ यूज़ करते हैं, उसको वो पब्लिक यूज़ के लिए नहीं है. एम्प्लॉयज़ भी उसको एक सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्ट करके यूज़ करते हैं और वही एक्सेस कर सकते हैं, उन्हीं के पास ऑथराइजेशंस होती हैं. तो जब वो अपने काम के लिए इसको यूज़ करते हैं, देन इट इज़ इंट्रानेट. ओके. सो इंट्रानेट बेसिकली क्या है कि एक लोकल सेंट्रल सर्वर होता है और उससे क्या होता है कि कंप्यूटर्स वहाँ पे उस सर्वर के साथ कनेक्टेड होते हैं. तो जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो सारी की सारी उस डाटाबेस में चली जाती है, उस सर्वर में चली जाती है. सो दिस इज़ इंट्रानेट. जब हम अपने कंप्यूटर्स को एक सर्वर के साथ कनेक्ट कर देते हैं, तो जितने भी कंप्यूटर्स कनेक्टेड होंगे उन सब के पास इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी. क्लियर? सो व्हेन वी आर डूइंग द स्कोप,
Like you can see here B2B, B2C, C2C and intra-B. So what are all these? So B2B means business to business transactions. Now what happens जब एक बिज़नेस दूसरे बिज़नेस के साथ ट्रांजैक्शंस करता है किस चीज़ के लिए, जैसे क्रिएशन ऑफ यूटिलिटीज़। अब सेलिंग पहले होता है या मार्केटिंग पहले होती है? जस्ट थिंक, फर्स्ट वी डू मार्केटिंग एंड देन सेलिंग। मार्केटिंग मीन्स that with the help of marketing research we have to find out that what the customer actually needs, कस्टमर की क्या नीड है, एंड देन विद द हेल्प ऑफ दैट वो लोग एक प्रोडक्ट बनाते हैं। जब तक हमें कस्टमर की नीड नहीं पता हम प्रोडक्ट को डेवलप नहीं कर सकते। प्रोडक्ट बनता ही कस्टमर की नीड रिक्वायरमेंट्स को देख के है, उसके बाद सेलिंग होती है। तो जब हम अपने कस्टमर्स को गुड्स डिलीवर करते हैं जो गुड्स उनको सेटिस्फाई करते हैं, दैट मीन्स वी आर क्रिएटिंग द यूटिलिटीज़। हमने वो चीज़ डिलीवर करनी है जो चीज़ यूज़ करके उनको सेटिस्फैक्शन मिले, राइट। फॉर एग्ज़ाम्पल अब मेरी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ओके। अब कार बनाने के लिए सारा रॉ मटेरियल तो मेरे पास नहीं हो सकता। आई हैव टू कॉन्टैक्ट दी अदर बिजनेस फर्म्स। टायर वाले अलग होंगे, स्टील वाले अलग होंगे एंड सो ऑन, क्योंकि मुझे डायरेक्ट डिफरेंट रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है, ओके। तो जब मैं डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस फर्म से अपना रॉ मटेरियल मंगवा रही हूँ, मैनेज कर रही हूँ अपने इनपुट को, तो इसको हम बिज़नेस टू बिज़नेस ट्रांजैक्शंस बोलते हैं। टू मैनेज द इनपुट चेन वी डू बिज़नेस टू बिज़नेस ट्रांजैक्शंस। और ये किसकी हेल्प, किससे ये पॉसिबल होता है? विद द हेल्प ऑफ दैट डाटाबेस दैट आई हैव टोल्ड यू, क्योंकि हमारा डाटाबेस उन सप्लायर के डाटाबेस से कनेक्टेड होता है। नाउ सपोज़ कि अगर मेरा मिनिमम स्टॉक है 100, तो उनको वहाँ पे पता चल जाता है कि स्टॉक 100 से कम हो गया है। एक ईमेल पहुँच जाता है वेंडर के पास। और अगर स्टॉक लेस देन 100 हो गया, सपोज़ करो कि टायर्स हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो अगर वो 100 से कम हो गए हैं तो ऑटोमेटिकली जब वो ईमेल वेंडर के पास पहुंचेगा वो दोबारा से मेरे पास जो टायर का स्टॉक है वो भिजवा देंगे। दिस इज़ पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ डाटाबेस। ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हुई, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज B2B ट्रांजैक्शन। दिस इज़ B2B कॉमर्स। इसी तरह से जब मेरी कार रेडी हो जाएगी सारे रॉ मटेरियल्स को जोड़कर, इनपुट्स को जोड़कर, तो जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं अगर उनका ऑर्डर आया होगा मेरे पास तो ऑटोमेटिकली मैनेज करूँगी मैं, क्योंकि जब मेरे पास ऑर्डर आ जाएगा देन आई विल जस्ट मेक श्योर कि जो प्रोडक्ट है कार वो उनके पास पहुंच जाए, अगर ऑर्डर उनका प्लेस हुआ होगा तो। दिस इज़ ओनली पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चेन। तो इनके भी क्या होंगे, डाटाबेसेस मेरी डाटाबेस के साथ कनेक्टेड होंगे। नहीं होगा देन आई विल नॉट बी एबल टू know that whether the order has been placed or not electronically. This is all electronically, okay. Next is that what do you mean by the term collaboration? तो आपको पता है कि collaborate करना, मिलके काम करना। कमर्शियल नेगोशिएशन इज़ लाइक जब हम एग्री करते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शंस के प्राइस पर कि क्या प्राइस है और हम उस पर एग्री करते हैं कि दिस प्राइस इज़ फाइन। इनवाइटिंग टेंडर्स, जब हम सप्लायर्स को इनवाइट करते हैं कि वो ऑफ़र प्रोवाइड करें, ठीक है। एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स टू वेरियस डिस्ट्रीब्यूटर्स, ये मैंने आपको जो डिस्ट्रीब्यूशन चेन का एग्जांपल बताया है कि जब कार रेडी हो जाएगी, ये वो है। देन वी हैव B2C, बिजनेस टू कस्टमर। तो ये सिर्फ बिजनेस टू कस्टमर नहीं है, ये कस्टमर टू बिजनेस भी है। अब बिज़नेस टू कस्टमर जब आता है तो आपके माइंड में सबसे पहले आता होएगा ऑनलाइन शॉपिंग, राइट। ओके, सो मार्केटिंग, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट बिफोर सेलिंग मार्केटिंग इज़ डन, मतलब हम एडवर्टाइजमेंट कर देते हैं, इन्फॉर्मेशन पास कर देते हैं और उसके बाद हम प्रोडक्ट अवेलेबल करवाते हैं ऑनलाइन, राइट। अब
मार्केटिंग कभी ख़त्म नहीं होती, क्योंकि अगर एक एक बार सेल हो भी गई तो भी मार्केटिंग कंटिन्यू रहती है। कैसे? क्योंकि आफ्टर सेल सर्विसेज हमें देनी होती हैं। ये सब करने से कॉस्ट हमारी काफ़ी कम हो जाती है, क्योंकि सारा काम इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है एंड स्पीड बढ़ जाती है। अब बी टू सी में टेलर मेड रिक्वायरमेंट्स भी पॉसिबल हैं, कि जैसे मेरे कहने पे, मेरी नीड के अकॉर्डिंगली कोई चीज़ अगर बने। जैसे अमेज़ॉन पे शॉपिंग करने के बाद जब हम बुक करते हैं तो वहाँ पे वो हमसे पूछता है गिफ्ट रैपिंग बिफोर डिलीवरी, तो वो हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम कर रहा है। सो दिस इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन इट इज़ गोइंग फ्रॉम बी टू सी। वेबसाइट्स 24 आवर्स ओपन होती हैं, और आपने देखा होगा कि जब भी हम कोई चीज़ बाय करते हैं तो वहाँ पे प्रोडक्ट रिव्यू ज़रूर पूछा जाता है, ताकि हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल पता चले। हम इमेजेस भी डाल सकते हैं, हम ये भी बता स्टार्स भी दे सकते हैं, रेटिंग कर सकते हैं, क्या प्रॉब्लम आई है क्या नहीं, जस्ट ये देखने के लिए कि लोगों को प्रोडक्ट क्वालिटी पसंद आ रही है या नहीं आ रही है। अब ये कस्टमर टू बिज़नेस कैसे है, कि कस्टमर ने क्या किया, रिव्यूज़ पोस्ट किए, जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो एक्चुअल में कस्टमर ही पहले एक ट्रांजैक्शन कर रहा है, जहाँ पे वो बता रहा है, या तो वो अपनी नीड बता रहा है, या वो एक रेटिंग करके बता रहा है कि प्रोडक्ट अच्छा है या नहीं। और ये जो रिव्यू है, रिव्यू करना, रेटिंग करना, इट इज़ ओनली पॉसिबल ऑनलाइन। और अगर वो चाहें वो कंप्लेंट्स भी कर सकते हैं 24/7, और इसके लिए उनको कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं पड़ेगी। इसी तरह से वो रिटर्न्स भी कर सकते हैं, रिटर्न्स का ऑप्शन भी है, रिप्लेसमेंट का ऑप्शन भी है, तो ये एक बेनिफिट भी उनको देता है। So this is all B2C commerce, business to commerce, which is actually, which is also C2B, means customer to business commerce also. Okay. Then we have C2C commerce, means customer to customer. This is very easy to understand. जब हम सिंपल वर्ड्स, ये आप ये कह सकते हो कि जब एक ट्रांजैक्शन हो रही है बिटवीन कस्टमर्स टू कस्टमर्स। अब यहाँ पे एक ऐसे एग्जांपल सुनो, OLX, क्विकर, Cars24। तो यहाँ पे जब ऑलरेडी यूज्ड बुक्स, क्लोथ्स, कार्स होती हैं, या कोई भी ऐसी एंटीक चीज़ें हम वो सेल कर रहे होते हैं, जो कि ऑलरेडी यूज़, मतलब एक तरह से सेकंड हैंड समझ लो। लेकिन अगर मैं किसी और पर्सन के साथ जाऊँ डायरेक्टली, तो फ्रॉड होने का चांस हो सकता है, या क्वालिटी पुअर हो सकती है। लेकिन ऑनलाइन ये जो काम होता है इलेक्ट्रॉनिकली, इसका फ़ायदा क्या है कि इनका एक सिक्योरिटी सिस्टम होता है। तो जब मैं क्विकर से कुछ ख़रीदूँगी तो क्या करते हैं वो लोग, जैसे मैंने मंगवाया, ठीक है, तो वो मेरी मनी, आई हैव टू पे द मनी, और मैंने एक प्रोडक्ट मंगवा लिया जो कि सेकेंड हैंड है। तो हमें लगता है कि सिक्योरिटी सिस्टम क्या है, सिक्योरिटी सिस्टम इसमें ये है कि मनी ब्लॉक हो जाती है कुछ टाइम के लिए। तो अगर मैं प्रोडक्ट मेरे पास पहुंच जाएगा, अगर मैं सेटिस्फाइड होंगी उस प्रोडक्ट से कि वो प्रोडक्ट ठीक है, तभी सप्लायर को पेमेंट पास करी जाती है। तो एक तरह से कि सर्टिफाइड सर्विसेज हैं। क्योंकि अब वो क्या करते हैं, पहले ये जो लोग हैं जो ये काम करते हैं, जिनकी एक C2C कॉमर्स में जो लोग हैं, वो चेक करते हैं पहले खुद कि जो प्रोडक्ट है वो कैसा है, और फिर वो यूज़ करने चेक करने के बाद वो, उसके बाद ही वो पोस्ट करते हैं, वरना वो पोस्ट करते ही नहीं ऐसे प्रोडक्ट को। आजकल क्या हो गया है कि लोगों ने कंज्यूमर फॉर्म एंड प्रेशर ग्रुप्स बनाना शुरू कर दिया, जहाँ पे अगर कोई कस्टमर के साथ धोखा हुआ है, जितने भी कोई चिटिंग हुई है, तो वो अपने वहाँ पे रिव्यू शो कर सकते हैं, जो कि वो नेगेटिव रिव्यू ही बताएंगे। और वेंडर्स पे भी प्रेशर है कि वो रिटर्न भी करेंगे और उनको रिफ़ंड भी करेंगे कस्टमर को। तो ये खुद ये एक ग्रुप बन चुका है, प्रेशर ग्रुप या कंज्यूमर फॉर्म। तो अगर इतनी चीज़ें हैं, सिक्योरिटी सिस्टम है, ये ग्रुप्स हैं, तो ऐसे ट्रांजैक्शंस करना इज़ सेफ़। आप कह सकते हो कि इतनी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि वो लोग सिक्योरिटी का पूरा ख्याल रखते हैं, कोई फ्रॉड होने के यहाँ पे चांसेस नहीं है। सो दिस इज़ C2C, कॉमर्स टू कॉमर्स। ओके। देन वी हैव इंट्रा बी। इंट्रा बी मीन्स कि जो मैनेजिंग हो रही है, मतलब इंटरेक्शन करना लोगों के साथ, या डीलिंग्स करना हम डिपार्टमेंट के बीच में, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में कितने सारे एम्प्लॉयज़ हैं, वो आपस में इंटरेक्ट जो कर रहे हैं, आपस में जो डीलिंग्स कर रहे हैं, मार्केटिंग, सेल डिपार्टमेंट के साथ या फाइनेंस के साथ, वो जितनी भी डीलिंग्स उनकी हो रही हैं, वो सारी की सारी क्या है, इंट्रा बी कॉमर्स। इंट्रा, उनका कंप्यूटर नेटवर्क होता है, जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, वो एक्सेस कर सकते हैं, डिमांड एक्सेस कर सकते हैं कि बाहर डिमांड क्या चल रही है, और
क्योंकि ये सारा काम इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है तो दे आर एबल टू एक्सेस दिस, क्योंकि उनके पास इंटरनेट है। इंटरनेट मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि उनके पास अपना सॉफ्टवेयर होता है और वही ऑथराइज़ कर सकते हैं, हर कोई नहीं कर सकता, उसको यूज़ करके वही काम करते हैं। तो जब उन्होंने एक्सेस कर ली डिमांड बाहर क्या चल रही है, और वो वहीं पे बैठे बैठे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सब कुछ बताते रहते हैं और बताते रहते हैं कि डिमांड में क्या रिक्वायरमेंट आ रही है, क्या सर्विसेज उनको चाहिए, कंटिन्यूसली वो फीडबैक देते रहते हैं एंड उसके हिसाब से प्रोडक्ट बनता है। जब प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो जाता है उसी प्रोडक्ट को फिर सेल्स डिपार्टमेंट सेल करता है। अगर प्रोडक्शन ही नहीं होगी तो वो सेल भी नहीं कर सकते। तो इसी तरह से देखो, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, तीनों इंटर रिलेटेड हैं। वो डीलिंग्स कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिकली विद द हेल्प ऑफ इंट्रानेट, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज इंट्रा बी कॉमर्स। सॉरी। इससे क्या फ़ायदा होता है कि जो उनका स्टॉक है, कैश मैनेजमेंट अच्छा होता है क्योंकि सारा काम इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है, कोई फ्रॉड होने के चांसेस नहीं है। आपका जो मशीन है, प्लांट एंड मशीनरी, वो अच्छे से यूटिलाइज़ हो रही है। अगर कोई कस्टमर की प्रॉब्लम है वो भी वो वहाँ पे ऑनलाइन बता सकता है, तो आपको सब कुछ आपके पास आ रहा है क्योंकि इट इज़ 24 आवर्स, तो आप जितनी भी कंप्लेंट्स है वो हैंडल कर सकते हो। सो दैट्स वाई इट इज़ वेरी सक्सेसफुल। इनफैक्ट अगर आपने सुना हो तो कई ऐसी कंपनीज़ हैं जो कि अपने एम्प्लॉयज़ को बोलते हैं आप घर बैठे ही काम करो। मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लॉकडाउन की जो आजकल हो रहा है, पर कुछ काम ऐसे हैं कि जिसमें एक एम्प्लॉय को सच में ऑफिस में आने की ज़रूरत नहीं है, पूरा ऑफिस ही उसका घर पे होता है क्योंकि उनके पास वीपीएन होता है जो कि एक तरह का इंटरनेट ही होता है जहाँ पे वो वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं क्योंकि सारा काम ऑनलाइन है। दिस इज़ इंट्रा बी कॉमर्स। क्लियर? इंटरनेट में आपको दोबारा बता देती हूँ कि एक लोकल सेंट्रल सर्वर होता है जहाँ पे कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं, जितनी भी उनकी ब्रांचेज़ हैं उस कंपनीज़ की, वहाँ पे भी जितने कंप्यूटर्स होंगे सारे उस लोकल सर्वर्स के साथ सेंट्रल जो सर्वर है वो कनेक्टेड होता है। तो इन्फॉर्मेशन पास होती रहती है जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है, डाटा अपलोड हो जाता है जब भी कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होती है थ्रू इंटरनेट, डाटा इज़ अपलोडेड एट दैट टाइम। ओके। So next we have that what are the opportunities or benefits of e-business. I think, okay, I think I have skipped the page. No. So there is one topic missing. It's just starting from point 2. I don't know what was the problem. You just see it from your book. Okay. सो द फर्स्ट बेनिफिट क्या है, अगर अब आपको पता है ई बिज़नेस क्या होता है, ई कॉमर्स क्या होता है, और आपको ट्रेडिशनल बिज़नेस मतलब जो कि इंटरनेट के थ्रू नहीं होता जैसे हम नॉर्मल काम करते हैं वो क्या होता है। सो इसमें डिफरेंस क्या है, बेनिफिट क्या है ई बिज़नेस का। पहले अगर हम ई बिज़नेस कर रहे हैं मीन्स वेबसाइट्स थ्रू इंट्रानेट एंड इंटरनेट, तो ईजी टू फॉर्म है, इतनी रिक्वायरमेंट नहीं चाहिए क्योंकि मुझे कौन सा कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, कोई कोई जगह खरीदनी है, मैं तो ऑनलाइन काम है, मैं घर पे बैठे जब मर्ज़ी शुरू हो जाऊँ। हाँ, कॉन्टैक्ट ज़रूर चाहिए, लेकिन इंटरनेट टेक्नोलॉजी की वजह से आपको बहुत बेनिफिट्स हैं क्योंकि आजकल बहुत सॉफ्टवेयर ऐसे आ गए हैं कि आप काम कर सकते हो। ई बिज़नेस में क्या होता है, आप वेबसाइट बनाओ, जो भी आपका काम है, मोबाइल्स का है या शूज़ का है या मेकअप का है, कुछ भी, उसकी पिक्चर्स अपलोड करो, कस्टमर आपकी वेबसाइट पे आता है, ऑर्डर प्लेस कर देता है। तो देखो कितना, अगर वो कंपेयर भी करना चाहता है तो भी वो काम बहुत फास्ट है, तो इसमें इतनी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। वेबसाइट कोई भी बना सकता है, इट जस्ट यू नीड टेक्निकल नॉलेज एंड एक्सपर्ट्स। कन्वीनियंस क्या है कि आप घर पे बैठे शॉपिंग कर सकते हो। मिलियंस ऑफ पीपल कैन डू दिस शॉपिंग और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन सिटिंग एट होम। स्पीड ऑब्वियसली ज़्यादा है, अगर हम पेमेंट भी कर रहे हैं तो भी वो जितनी स्पीड लाइट की है उससे भी जल्दी आप समझ लो कि वो ट्रांजेक्शन पूरी हो जाती है। नेक्स्ट इज़ ग्लोबल रीच। अब ये नहीं है कि ना, अब आपको क्या लगता है कि अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील ही वेबसाइट्स हैं? नो, देयर आर सो मैनी वेबसाइट्स। अगर मैं चाहूँ मैं फ़ॉरेन से भी कुछ मंगवा सकती हूँ, इट्स जस्ट दैट आई हैव टू पे द शिपिंग मोर और टाइम ज़्यादा लग जाएगा। जैसे क्लब फैक्ट्री था जो बैन हो गया, वो चाइना से था। तो इस तरह के ऐप्स भी आपने देखे हैं। इट इज़ जस्ट दैट इट इज़ लाइक इट इज़ ग्लोबल रीच कि आप ज़रूरी नहीं आप इंडिया का सामान ही ले रहे हो, आप यहाँ बैठे जहाँ से मर्ज़ी सामान को ख़रीद सकते हो। नेक्स्ट इज़ कॉस्ट सेविंग।
तो मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया कि आपको कोई शोरूम लेने की ज़रूरत नहीं है जहाँ पे आपको अपने गुड्स डिस्प्ले करने हैं, आपको कोई वर्कर्स एक्स्ट्रा रखने की ज़रूरत नहीं है, कोई मिडल मैन की रिक्वायरमेंट नहीं है। डायरेक्ट सेल हो रही है आपकी, मतलब मैन्युफैक्चरर की, जैसे मैन्युफैक्चरर की डायरेक्ट सेल होती है वैसी आपकी हो रही है। सो इट इज़ वेरी बेनिफिशियल। लास्ट इज़ पेपरलेस सोसाइटी। मुझे कोई पेपर वर्क करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि सारा काम ऑनलाइन हो रहा है, तो सारे रिकॉर्ड्स भी ऑनलाइन हैं, कंप्यूटर लैपटॉप में फीड है, वर्ड एक्सेल में, तो पेपर वेस्ट नहीं हो रहा, पेपरलेस सोसाइटी है। ओके, so in this way e-commerce e-business is very very beneficial for us। e-business basically क्योंकि wider term है। what is the difference between e-business and traditional business? so first is formation, कि ई बिज़नेस बहुत ईजी है बनाना, लेकिन जो ट्रेडिशनल बिज़नेस है जैसे नॉर्मल जो शॉप्स फैक्ट्रीज़ हैं वो बहुत डिफ़िकल्ट है क्योंकि लीगल फॉर्मेलिटीज़ भी करनी पड़ती हैं, पैसे भी ज़्यादा लगते हैं। पर्सनल टच किस में है? ई बिज़नेस में बिल्कुल नहीं है क्योंकि ऑनलाइन काम हो रहा है, कोई फ़ेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं है, लेकिन ट्रेडिशनल बिज़नेस में पर्सनल टच हो सकता है। सेटिंग अप कॉस्ट एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट, सेट मतलब बनाना, स्टार्टिंग से सेट करना सारा काम, या ऑपरेटिंग कॉस्ट उसको चलाने का रोज़ का खर्चा, वो ई बिज़नेस में दोनों में कम है, ट्रेडिशनल में हाई है। फिज़िकल एग्जामिनेशन आप गुड्स की कैसे चेक कर सकते हो? आप हाथ में पकड़ के तो चेक नहीं कर सकते हो आप किसी भी गुड को ई बिज़नेस में, लेकिन ट्रेडिशनल बिज़नेस में आप कर सकते हो। शॉप पे जाओ तो आप अगर कोई चीज़ ख़रीद रहे हो तो यू कैन जस्ट, वॉशिंग मशीन ले रहे हो, रेफ्रिजरेटर ले रहे हो, कोई भी बुक ले रहे हो, तो यू कैन चेक इट। एक्सपेंशन किस में हो सकती है? इंटरनेट जितना मर्ज़ी इंटरनेट की हेल्प से आप जितना मर्ज़ी अपने काम को बढ़ा लो, लेकिन लीगल फॉर्मेलिटीज़ की वजह से ट्रेडिशनल बिज़नेस को मैं इतना नहीं बढ़ा सकती हूँ। ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायर्ड मीन्स एम्प्लॉयज़। अब जो एम्प्लॉयज़ या स्टाफ है वो मुझे टेक्निकली क्वालिफाइड आईटी एक्सपर्ट्स चाहिए, प्रोफेशनल्स जो होते हैं वो मुझे चाहिए अपने ई बिज़नेस के लिए, जो क्योंकि सॉफ्टवेयर चलाना, इंटरनेट ये सारा टेक्निकल काम है, कंप्यूटर्स रिलेटेड। लेकिन जो ई ट्रेडिशनल बिज़नेस है उसमें अगर हम चाहें तो थोड़े जो इतने हाईली एजुकेटेड लोग नहीं भी होते, स्किल्ड लेबर होती है, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड लेबर को भी अगर आप कोई काम सिखा दोगे वो काम कर लेगा, लेकिन वो वेबसाइट नहीं चला सकता। रिस्क कितना है? बहुत रिस्क है, क्योंकि जब हम कोई प्रोडक्ट मंगवाते हैं ऑनलाइन तो कैसे निकलेगा नहीं, वो हमें नहीं पता, अच्छा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। और जो ट्रेडिशनल है उसमें रिस्क बहुत कम है क्योंकि आप पर्सनली चेक कर लेते हो, पर्सनल इंटरेक्शन होता है, तो रिस्क काफ़ी कम है। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, अब ई बिज़नेस वालों को क्या ज़रूरत पड़ी है बीच में कोई मिडल मैन रखने के लिए? वो खुद डायरेक्ट एक मैन्युफैक्चरर की तरह डायरेक्ट डीलिंग करो कस्टमर के साथ। जितने बीच में मिडल मैन रखोगे उतने प्रॉफिट देने पड़ेंगे, और उसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं है, लेकिन ट्रेडिशनल में बहुत इंटरमीडियरीज़ की ज़रूरत होती है। मिडल मैन मैन्युफैक्चर बनाता है, फिर वो होलसेलर के पास जाता है, होलसेलर आगे एजेंट को देता है, एजेंट आगे रिटेलर को देता है, रिटेलर फिर जाके आगे कस्टमर को देता है। सो इट इज़ अ वेरी लेंथी प्रोसेस, और बीच में उतना ही कमीशन होता है, लेकिन ई बिज़नेस में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। लेंथ ऑफ बिज़नेस साइकिल, अब कितना टाइम लगता है? शॉर्टर है ई बिज़नेस में क्योंकि बहुत सारे काम साइड बाय साइड हो सकते हैं, लेकिन जो ट्रेडिशनल है वो काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस है क्योंकि एक टाइम पे हम कह लो एक ही काम हो सकता है, एक ही प्रोसेस कैरी आउट हो सकता है कि पहले परचेज़ होता है, फिर ही प्रोडक्शन होगी तो ही सेल होगी, फिर उसके बाद हम आफ्टर सेल सर्विसेज कर सकते हैं। पहले मैं सेलिंग नहीं कर सकती, पहले मैं प्रोडक्शन नहीं कर सकती, पहले परचेज़ करना पड़ेगा, फिर प्रोडक्शन होगी, फिर सेल होगा, लेकिन ई बिज़नेस में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? सो वी आर डन विद दिस चैप्टर। इसके अलावा आपका चैप्टर 5 डन है, बाकी सारे टॉपिक सीबीएसई ने डिलीट कर दिए हैं। स्कोप, benefits, difference and meaning, all these 4 points are there in this chapter. Okay.